Hello student, I am your bio mentor Abhijit Das and you are watching Drona Academy e-learning series. Today we will going to start the life processes. This is the first chapter of class 10 and it's a vast chapter. From here so many questions actually may come in your exam. So let's start this chapter. Life processes. First, we should know what is life. Life is a time span, and in this time span, there are so many processes actually is observed. And what are those processes? Like the nutrition, like transportation, like excretion. So these are the processes, and these processes actually maintain our life. Okay, so today we will start only the first process of this chapter, that is the nutrition. So, what is nutrition? First, we should know what is nutrition. Nutrition means taking food and utilize that food. Taking food and utilize that food. Okay? So, this means taking food, and utilizing फूड. हम लोग खाना खाते हैं, तो ये जो खाना हम लोग एक्चुअली खाते हैं उसको यूटिलाइज करना है. तो देखो, जो खाना हम लोग खाते हैं, सोचो द पीस ऑफ चिकन, चावल, चपाती, जो भी हम लोग खाते हैं वो हम लोग इनटेक करते हैं, and through the gastrointestinal tract, not only gastrointestinal tract, to the digestive tract, through the digestive tract, this food actually passes. And in the food, please keep it in your mind very carefully, in the food the nutrients are present. In the food the nutrients are present. These nutrients actually runs to the cell. कहाँ जाता है ये nutrients? सेल के अंदर जाता है. Understood? And in the cell, when the nutrients reach, on the other hand, one another thing is actually reaching to the cell. What is that? Oxygen. So these two, nutrients and oxygen, enter into the cell. Now this nutrients actually is oxidized and produce energy. And produce energy. Energy production is happened there. Now, this energy is formed in the form of heat energy. The energy is produced in the form of heat energy, and for this energy we actually do any kind of work. We can run, we can eat, we can walk. For any kind of work the energy is needed. So what is the importance of nutrition? First, the importance or significance is production of energy.
production of energy. This production of energy is the prime importance of nutrition. Second, for growth. Actually, the nutrients help in our growth. And third one is repairment. Repairment means if there is any wound is taking place, at that time it will repair. How this wound will be repaired? By the nutrition. Okay, the nutrients actually makes the new cell on that new and fresh cell on that place of wound. So it will repair. That means healing will be there. So nutrition, what are the importances of nutrition? First one is production of energy, second one is for growth, and third one is for repairment. So what is nutrition? Taking and utilizing food. Taking and utilizing food. Next, importance क्या है? First one, production of energy. Second one, it actually helps in our growth, and it helps also in the repairment of the wound part of our body. Now, we get nutrition from some particles, from some substances. Those substances are known as nutrients. Now, these nutrients are of two types. Okay, first one is macronutrients, second one is micronutrients. Okay, so first one is macronutrients, second one is micronutrients. Macro means large. That means the nutrients which are actually required for the development of our body in a large quantity, those are known as macronutrients. Again, macro मतलब क्या होता है? बड़ा. That means जो nutrient बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होता है हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड वन is proteins. Third one is lipids. ये जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होता है. तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल होगा वाइटामिन्स. ये बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट है मिनरल्स. ओके, so vitamins, minerals, these are the micronutrients. Micronutrients are those nutrients that actually require in very little quantity for the development of our body or for our proper nutrition. So the nutrients are actually classified into two groups. First one, macronutrients, and second one, micronutrients. And we have learned what are the examples and definitions of these two categories. Okay, so next topic, the classification of nutrition. हम लोग अभी क्या क्या पढ़े कि what is nutrition, that is the definition of nutrition. Then what is nutrients, what are the classification of nutrients, and the last one is the importances of the nutrition.
So we actually classify the nutrition into two groups. Okay, two categories are there. First one is autotrophic nutrition and second one is heterotrophic nutrition. Okay, first one is autotrophic nutrition, second one is heterotrophic nutrition. So today we will discuss about this autotrophic nutrition. Auto means self. Auto means self, ऑटोमेटिक बोलते हैं हम लोग. तो autotrophic nutrition means the mode of nutrition in which the organism actually can produce their own food by themselves. Okay, mode of nutrition in which the organisms can produce their own food by themselves. Okay, so autotrophic nutrition means the mode of nutrition in which the organism can produce their own food by themselves. That means जो न्यूट्रिशन में कोई एक ऑर्गेनिज्म वो अपना खाना खुद बना सकता है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोल रहे हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. एंड ये जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आप बोल सकते हो कि हमारे घर में हमारी मम्मी भी तो खाना बनाती है तो वो ऑटोट्रोफ हो जाएगी. नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम लोग खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं. हमारा मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है, मीन्स खाना को प्रिपेयर करती है. ओके, सो दैट नॉट मीन्स दैट शी इज ऑटोट्रॉफ. वो चिकन का एक प्रिपरेशन बना सकती है, वो चावल का प्रिपरेशन बना सकती है, बट शी कांट प्रोड्यूस ग्लूकोज. वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है. ओके, तो जो ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर सकता है वो कौन है, वो है ग्रीन प्लांट्स. एग्जाम्पल कौन होगा, ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स. ओके, ये ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली ऑटोट्रॉफ है. ये क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स वो खाना दैट मीन्स ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकता है. तो इसीलिए ये इन लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दैट मीन्स वो अपना खाना, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. अंडरस्टूड. अभी ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये हम लोग समझ लिए. अभी हम लोगों को ये जानना है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो वो जो प्रोसेस से ये खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनमें, वो प्रोसेस का नाम क्या है, वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. ओके, अभी देखो फोटोसिंथेसिस ये जो वर्ड है वो दो अलग अलग वर्ड से बना है. फोटो का मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एक टर्म रहेगा वो टर्म का मीनिंग पता करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. तो फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब होता है लाइट. ओके, एंड सिंथेसिस, ये सिंथेसिस का मतलब बनेगा प्रोडक्शन.
तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या है लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या है प्रोडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस कुछ प्रोड्यूस हो रहा है अंडर लाइट। ओके, फोटोसिंथेसिस सिर्फ नाम से हम लोगों को ये पता चला कुछ ना कुछ सिंथेसिस और प्रोडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कौन सा लाइट? सनलाइट। ओके, कौन सा लाइट में प्रोड्यूस होगा? सनलाइट। क्या प्रोड्यूस होगा? खाना, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। ओके, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द फूड इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फूड, दैट इज द ग्लूकोज। द ग्लूकोज और फूड इज प्रोड्यूस्ड अंडर सनलाइट in the body of the green plants with the help of the chlorophyll. Okay, तो and water. green plants जो है उधर वो लोग green क्यों है? just because of the presence of a special kind of pigment, and the name of that pigment is chlorophyll. Okay, so this is the pigment, okay, for which the plants are green. And it is the pigment that helps in photosynthesis. Okay, so this is a pigment that helps in photosynthesis, and this is the pigment for which the plants are green. Okay, तो ये कहाँ पे रहता है? इन क्लास 9 हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े थे, सेल पढ़े थे। तो सेल में कुछ ऑर्गेनेली रहता था, वो ऑर्गेनेली में से एक ऑर्गेनेली था क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो वो जो सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है वो इन द बॉडी ऑफ द ग्रीन प्लांट्स रहता है, एंड इन दैट क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। Okay, this chlorophyll actually helps in photosynthesis. So again I am telling you, what is photosynthesis? Photosynthesis is the process, okay, this is a process by which the green plants actually produce their food in presence of sunlight with the help of water and the chlorophyll present in chloroplast in the plant cell. Okay, so ये photosynthesis जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे photosynthesis का प्रोसेस के बारे में। तो ये जो photosynthesis है वो photosynthesis में हम लोग देखेंगे कि कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए। सोचिए आप कि आप कोई एक प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को कुछ मटेरियल्स जुगाड़ करना होगा। ओके, सोच आप कोई खाना बनाने गए तो आपको बर्तन चाहिए, चूल्हा चाहिए, मसाला चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, पानी चाहिए। तो दिस आर द रॉ मटेरियल्स। ओके, सो इधर भी कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। ये इधर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉ मटेरियल ये बहुत बार आया है। फॉर फोटोसिंथेसिस तो क्या क्या होगा? फर्स्ट वन सनलाइट, सेकेंड वन chlorophyll, third one
वाटर। एंड फोर्थ वन जिसके बारे में अभी तक मैं आपको नहीं बोला हूं, फोर्थ वन जो है वो एक गैस है, उसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये चार, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार चीज चाहिए किसके लिए? फॉर द process that is the photosynthesis. Sunlight, then chlorophyll, then water and the last one is carbon dioxide. तो ये चार रॉ मटेरियल्स है। कैसे फोटोसिंथेसिस होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ओके तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में हम लोग रॉ मटेरियल्स देख लिए, फोटोसिंथेसिस का अभी प्रोसेस क्या है, ये चार चीज तो है हमारे पास, अभी प्रोसेस अप्लाई करना है। तो प्रोसेस क्या है? जो सनलाइट है वो सनलाइट, उसमें एनर्जी रहता है, सनलाइट में एनर्जी रहता है। अभी ये जो एनर्जी है इसको हम लोग बोलेंगे सोलर एनर्जी। सनलाइट में कौन सा एनर्जी होगा? सोलर एनर्जी। ओके, सनलाइट में कौन सा एनर्जी है? सोलर एनर्जी। अभी ये जो सोलर एनर्जी जो सनलाइट में है वो सोलर एनर्जी को रिसीव कौन करता है? क्लोरोफिल। सोचो, दिस इज अ लीफ। ओके, दिस इज अ लीफ। इस लीफ में जो सेल रहता है, इधर तो सेल रहेगा, तो जो सेल रहता है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी रहेगा। तो इसमें वो क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा। अभी जो सन है, वो सन से सन रेज आता है एंड ये जो सन रेज है इसमें सोलर एनर्जी रहता है। इस सोलर एनर्जी को रिसीव करता है कौन? क्लोरोफिल। ओके, सन रेस में जो एनर्जी है वो उसमें सोलर एनर्जी रहता है। ये सोलर एनर्जी को कौन रिसीव करता है? क्लोरोफिल। ओके, तो कोई एक बंदा जिसके अंदर एनर्जी आ गया हो तो वो क्या हो जाएगा? एनर्जाइज्ड हो जाएगा, वो एंथुजियास्टिक हो जाएगा। तो ये जो सनलाइट था उसमें जो सोलर एनर्जी है वो रिसीव किया क्लोरोफिल और वो एनर्जाइज्ड हो गया। जैसे ही वो एनर्जाइज्ड हो गया वो क्या किया? वो वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया। देखो, इन केस ऑफ सम बॉयज when they know that they have a lot of power, at that time वो क्या करते हैं? वो कोई दुबला पतला को ढूंढते हैं और दुबला पतला के बंदा के साथ वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्लोरोफिल जो है उसके पास क्या आ गया है? एनर्जी आ गया है, पावर आ गया है। वो दुबला पतला कोई एक बंदा को ढूंढा। किसको ढूंढा? वाटर को ढूंढा। वाटर के साथ जाके फाइट कर वो स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे ही वो वाटर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया तो वो जो वाटर है वो मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल वो प्रोड्यूस कर दिया। ये दो वाटर मॉलिक्यूल दो चीज प्रोड्यूस करेगा, एक चीज होगा ऑक्सीजन एंड और एक चीज होगा हाइड्रोजन। अभी ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जाके किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ।
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2 जुड़ जाएगा एंड जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 जुड़ जाएगा तो वो प्रोड्यूस कर देगा ग्लूकोज। ओके, तो इस ग्लूकोज में वो जो सोलर एनर्जी था जो रिसीव किया था क्लोरोफिल, वो सोलर एनर्जी के रूप में कन्फाइंड नहीं होता है। एक्चुअली इन द ग्लूकोज सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं बोर्ड। ओके, तो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी में। और एक बार बोल रहा हूं, सोलर एनर्जी कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी में। ओके, सो you know another point that in the photosynthesis the solar energy is converted into chemical energy। बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं and that's why I am giving the focus on this part। So solar energy actually will be converted into the chemical energy। solar energy किस में बदल रहा है? chemical energy में। एंड ये केमिकल एनर्जी कहाँ पे है? इन द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कैसे हुआ? क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल क्या किया? रिसीव किया। किसको? सोलर एनर्जी को, सन रेज को। ओके, उसके बाद क्या हो गया? एनर्जाइज्ड हो गया। उसके बाद क्या किया? एक दुबला पतला इंसान को वो ढूंढा। वो कौन था? वाटर। वाटर को क्या किया? फाइट करना शुरू किया वाटर के साथ। एंड जैसे ही फाइट करना वो स्टार्ट किया तो वाटर ब्रेक डाउन हो गया। किसमें? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। ये हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ गया एंड प्रोड्यूस कर दिया ग्लूकोज। ओके, और एक बात इधर वो है, देखो कोई भी कंपाउंड के साथ जब H2 आके ज्वाइन करता है तो वो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। जब कोई एक कंपाउंड के साथ आके H2 जुड़ जाता है तो वो जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, उसका हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो इधर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। इधर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है एंड ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस पूरा प्रोसेस को हम एक लाइन में, एक इक्वेशन में लिखेंगे। वो क्या होगा? देखो, तो दिस इज द इंटायर रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। 6 CO2, CO2 में बोला था रॉ मटेरियल है 6 CO2, 12 H2O एंड उसके साथ क्या क्या है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो दिस 4 आर द रॉ मटेरियल्स। वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? C6H12O6। ये जो C6H12O6 है इसका नाम है ग्लूकोज। यही है खाना। ओके, एंड उसके साथ साथ और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? देखो, ऑक्सीजन इधर प्रोड्यूस हुआ था एंड H2O। तो ये तीन चीज, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड H2O। तो ये
पूरा प्रोसेस हुआ। बट हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस का एक्चुअली दो फेज है, ओके, दो पार्ट है, दो फेज, फोटोसिंथेसिस का दो फेज है, दो अलग अलग टाइप का रिएक्शन होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, और इसको हम लोग लाइट फेज एंड डार्क फेज भी बोल सकते हैं। तो लाइट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? दिस लाइट रिएक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस अंडर सनलाइट। विदाउट सनलाइट दिस प्रोसेस कांट बी सक्सेसफुल, ओके। लाइट फॉर लाइट रिएक्शन सनलाइट इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड, ओके। एंड डार्क रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस रिएक्शन के लिए सनलाइट उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, ओके। तो ये लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अभी ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, इस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। मैं बोला ना आपको कि जब क्लोरोफिल बहुत एनर्जाइज्ड हो जाता है, वो जाके क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए, इसका जो स्पेसिफिक टर्म है उसका नाम है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटो मतलब मैं अभी अभी बोला, फोटो मतलब लाइट। देखो, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन, ओके। लाइसिस मतलब क्या होता है? ये जो लाइसिस है, लाइसिस का मतलब बनता है ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, ओके। फोटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब बनता है ब्रेकिंग डाउन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अंडर सनलाइट, फोटो क्यों? अंडर सनलाइट में बोला, फोटो मतलब लाइट, तो अंडर सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो वो लाइट रिएक्शन का प्राइम इंसिडेंस है। सेकेंड जो है डार्क रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है? इधर रिडक्शन ऑफ CO2 एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ओके। तो लाइट रिएक्शन का प्राइम इंसिडेंट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दैट इज फोटोलाइसिस। एंड डार्क रिएक्शन का प्राइम इंसिडेंट क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2 एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो पार्ट, दैट मीन्स हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो स्टेप्स बोले थे, वो लास्ट टाइम हम लोग एक बार समाप्त कर लेते हैं। फर्स्ट क्या हुआ था? फर्स्ट जो है वो है क्लोरोफिल सनलाइट से सोलर एनर्जी रिसीव किया, ओके। एनर्जी रिसीव करने के बाद क्या हो गया? वो बहुत शक्तिशाली हो गया, तो वो दुबला पतला कोई इंसान को ढूंढे। वो इंसान का नाम क्या है? वाटर। वाटर मॉलिक्यूल को वो तोड़ दिया। क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या किया? हाइड्रोजन जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर घुस गया, तो प्रोड्यूस क्या किया? ग्लूकोज। तो मैं बोला कि कोई भी कंपाउंड के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अभी ये जो ग्लूकोज है उसमें एनर्जी कन्फाइंड हो गया। कौन सा एनर्जी? सोलर एनर्जी। बट सोलर एनर्जी के रूप में कन्फाइंड नहीं होता है, वो जो रूप में कन्फाइंड होता है वो है केमिकल एनर्जी। तो इधर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, अंडरस्टूड। उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग दो फेज में डिवाइड किए। एक को हम लोग बोले लाइट रिएक्शन, दूसरे को बोले डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था? फोटोलाइसिस, दैट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अंडर सनलाइट। एंड डार्क रिएक्शन
रिएक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ CO2 एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज. So this is the entire steps, entire process of photosynthesis. For today this much. In next video we will start again a new topic from this chapter. So for today, goodbye.